Namaskaram, and I want to welcome all of you in this training of website setup challenge. So we are going to take 7 day challenge, and in that 7 days, I will help you to launch your version one of the website. So I want to thank you for the decision, and I want to make sure that this decision is going to be your best decision, one of the best decision you have taken in your life. So, thank you so much for giving me the opportunity to share my experience and my knowledge to start your digital journey. So, your website is your home online, and I really want to congratulate you that you are getting started creating your own home. So let's start, and I'm going to guide you a little bit of path how we will go around it. And every day before the session I will give you the conceptual clarity, and before one of the video of the previous batch as well, and in the live session we will do the practices. So what will be the path? Let me share the path with you. All right, let me share the screen, and I will share the path with you. All right, so here I have welcome, and I really want to thank you for your decision. And this, you are creating your website, you are not creating your website only for you. Your world is waiting for your website. If whatever is your product, whatever is your services, whatever is your message, world is waiting for you. That's why you have this thought or this desire to create the website. This ह्यूज पॉपुलेशन वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, सबके दिमाग में ये एंजाइटी, ये बेचैनी, ये थॉट्स नहीं है कि उनको अपनी वेबसाइट बनानी है और उनको अपने प्रोडक्ट को लोगों को बताना है, अपने सर्विसेज को लोगों को बताना है. So this thought is coming, and that thought is so prominent that you are going through some courses and free videos, and now that you are determined, you are like you have decided that you are going to create your website, and you have paid and you have dedicated the time, money, and ready to take all the action to launch your website. So as much you are ready, the world is also waiting for you. So just imagine that this website you are not creating for yourself, you are creating this website for the world. So when your website will show up, then people will get to know, okay, what is your offering, what is your services, what is your product, how you want to make this world a better place, whether with your information or with making someone's life better with your product or with some services. So nice, thank you so much, and I really congratulate you and appreciate you that you have taken the call जो अंदर थी उस पे आपने उसके लिए आपने decision लिया, and that is the best thing you have taken. So few things I want to set up the context. I'm setting up this context for the entire training. First thing I want, see, with the enthusiasm or with the inspiration, we take a lot of action. बहुत बार हम इंस्पायर हो करके किसी चीज को देख करके बहुत सारे एक्शन की स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव सीन वन कार. एक कार देखा और मुझे भी वो कार लेनी है. So that I have seen a car and I want to have that car. So that is the one decision I have taken, that I want to have that car. But to have that car, whenever I will get started with it, कि मुझे इस कार के लिए मुझे पैसे चाहिए. So now the obstacle will come. Time obstacle will come, money obstacles will come, and whenever you are taking action, जब भी आप कोई action लेने जाओगे, कोई ना कोई obstacle आएगा. और now it's up to you कि आप उस obstacles को overcome करके action लेते हो, या उस obstacle से डर करके पीछे वापस comfort zone में चले आते हैं. तो ये जो वेबसाइट बनाने का प्रोसेस है वो भी आई वुड नॉट से इफ यू आर क्रिएटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो बहुत इजी होने वाला है. बट हियर आई एम हियर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू हैंड होल्ड यू, कि वो ऑब्स्टिकल मिनिमाइज हो सके. जो स्ट्रगल है, जो प्रोसेस है, वो जितना स्मूथ, जितना इजी, जितना गाइडेड, जितना टू दी पॉइंट हो सकता है, उसको मैं करने की कोशिश कर रही हूँ. और आपको अगर थोड़े बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, इवन यू आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इट, even you follow the system. Let's just try to follow the system. So that is you have to commit yourself to be a finisher. अभी आप एक बार आंख बंद करके बोलो कि I am a finisher. I'm going to finish this course. I'm going to show up every single day, 7 days, Monday to next Sunday, 8 o'clock.
and I will finish this course. I will launch my version 1. I'm committed to launch my version 1 of the website. That you can say 3 times in a day, or you can create a goal card. You can create a goal card, and there you can write that I'm going to launch my version 1 website on this 8th of July. So create a goal card, keep that goal card with you, read that goal card as often as possible, in the morning, in the night. That will help you to finish that entire course, right? So you have to be a finisher, and to be a finisher, what required? You have to be focused. So many things are coming in your way. So many like pop-ups and notifications, so urgent work, family requirement. I can understand, I can totally understand. So many, we are bombarded with so many informations, and everything seems very very important. बट एज यू हैव टेकन द डिसीजन फॉर दी 7 days कि 7 days में मुझे अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, तो फॉर दैट 7 days लेट्स फोकस ऑन वन थिंग कि ऑन 7th day ऑन संडे 8th July my version 1 of my website will be launched. उसके लिए whatever focus is required, सुबह 8 से 10 की क्लास का फोकस हो, अकाउंटेबिलिटी, आई विल सेट अप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर विद ईच ऑफ यू. आप लोग में से सब एक दूसरे, आई विल फिक्स दैट कि हु विल बी द अकाउंटेबिलिटी पार्टनर विद whom, और you will choose your accountability partner, and there you will share your progress. So their focus is required, and you have to just follow the system. फॉलो द सिस्टम मीन्स जो जो स्टेप्स हम लोग डिस्कस करेंगे, एक माइंडसेट का स्टेप्स डिस्कस करेंगे और एक स्किल सेट का स्टेप्स डिस्कस करेंगे. यू हैव टू जस्ट फॉलो द सिस्टम्स कि डेली क्लास में आना है, क्लास में जो असाइनमेंट्स मिले उन्हें पूरा करना है, और क्लास में आने से पहले जो वीडियोस मिले उसे देख करके आना है. You are just following the system, and you need not to do anything, and your version 1 will be ready, right? So that having said that, you have to be a finisher, and to be a finisher you have to be focused. Focus is the most valuable asset. We say that time is an asset, money is the asset, but our attention, our focus, like attention goes, energy flows, result come. तो अगर at the end of the day मुझे अपना वेबसाइट एज अ रिजल्ट के तौर पे चाहिए, तो हमारा फोकस, हमारा अटेंशन, हमारा एफर्ट भी वेबसाइट के क्रिएशन में ही होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 7 days. So that's I request all of you to be focused to for that 7 days, that you are determined to create your own website. तो वेबसाइट के लिए जो कंटेंट हो सकते हैं, जो इमेजेस हो सकता है, जो टेक्स्ट हो सकता है, जो वीडियोस हो सकते हैं, जो आइडियाज हो सकती हैं, जो रिसर्च हो सकता है, वो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे. एंड आई एम हियर टू गाइड यू. You need not to be focused on unguided way. Here I am to guide you ki where to focus, how to focus, how much to focus, how much time, how much effort. So I will give you the step by step, I will give you the daily assignments. You have to just follow the systems, and you are good to go. And you can be a finisher when you are following the systems. That is the saying, system works, people fail. System works, people fail means you can see that everywhere there is a system. स्कूल का सिस्टम है, कॉलेज का सिस्टम है, ऑफिस का सिस्टम है. अगर एक घर में एक अपना सिस्टम होता है, अगर सिस्टम ना हो तो बहुत मुश्किल है किसी चीज को अचीव करना, क्योंकि अगर हम अपने मन के अकॉर्डिंग करते हैं तो कभी मन करता है, कभी नहीं करता है. लेकिन अगर हम सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नो मैटर व्हाट, ऑफिस तो 10 बजे जाना ही है, नो मैटर व्हाट, डेली नहाना है, we are following the system, and then we are able to overcome all those obstacles. If we are following the system, then system works better than the human you can say that not brain, it's मन जिसको हम लोग बोलते हैं, मन से ज्यादा अच्छा system है. So you have to follow the systems and pay the price for your success. So whatever it requires, it's success is not free. We have to pay the price for it. It might be the money, or whenever we are paying the price in terms of money, time and effort. Be ready to pay the price for your success. So here you have to buy the domain name. So you have to be ready कि domain में आपको invest करना है, hosting में invest करना है. Domain और hosting के अलावा majority of चीजें we will use free, but if required you can also, if you are looking forward for the next level, you can also be ready to invest in the like customized theme, or जब जैसी website चाहिए उस website उस result उस success को achieve करने के लिए when and where required you have to invest. Treat it as an investment, not as an expense. जो आप डोमेन खरीदेंगे, होस्टिंग खरीदेंगे, या फ्यूचर में भी जब भी अपने बिजनेस को
स्केल करने की कोशिश करेंगे, तो ट्रीट दैट वेबसाइट इज योर बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, राइट? व्हेन यू विल ट्रीट इट एज अ बिजनेस, द बिजनेस काइंड ऑफ रिजल्ट इट विल गिव। अगर हम अपनी वेबसाइट को एज अ बिजनेस ट्रीट करेंगे तो वो हमें बिजनेस जैसा ही रिजल्ट देगा। और बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। कोई बिजनेस हम फ्री में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेट पे अगर आप वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड योर डोमेन एंड होस्टिंग। तो डोमेन और होस्टिंग का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड ट्रीट इट एज अ इन्वेस्टमेंट, नॉट एज अ एक्सपेंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट। सो एक्सपेंस यू आर कंज्यूमिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बट इन्वेस्टमेंट व्हेन यू चेंज द माइंडसेट एंड पर्सपेक्टिव कि हम पैसे तो लगा रहे हैं, वी हैव टू रिकवर इट एज फास्ट एज पॉसिबल। कि हम वेबसाइट बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज एंड ब्लॉग एंड ई कॉमर्स, whatever we are going to sell through the product, we have to recover our investment. We have to work towards to recover that investment. So then that's why the businesses are ready to invest money in their businesses, right? So be ready to pay the price of your success in terms of money, in terms of time, in terms of effort. And if you want to be a finisher, तो सिस्टम को आपको फॉलो करना है। सिस्टम फॉलो करने का मतलब है कि डेली क्लास में आप आएंगे, you should come to everyday class। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को डेली रिपोर्टिंग करेंगे, व्हाट इज द प्रोग्रेस, जो आपने कल आपने जो असाइनमेंट्स मिला था वो असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट किया या नहीं। और जो हम लोग वीकली सेशंस रखेंगे, फॉर एग्जांपल हर सैटरडे को 11 o'clock हमारा एक वीकली सेशन होगा, जिसमें हम कोर्स के बाद भी हम अपनी वेबसाइट पे काम करते रहेंगे। तो फ्यूचर में वीकली सेशन पे भी आपको आना है। इफ यू आर फॉलोइंग these three steps, you are all set, you can launch your website fantastically well. Nice, thank you so much. So next is like what will be the 7 days course we are going to launch in the 7 days. Right now I am giving you detail of the day 1, but gradually I will unfold all the days. So day 1 we are trying to set up our basic system and some action step. तो बेसिक सिस्टम में क्या क्या होगा कि डोमेन क्या होता है। डोमेन इज योर होम ऑनलाइन, डोमेन इज योर आइडेंटिटी ऑनलाइन, डोमेन इज योर बिजनेस नेम ऑनलाइन। डोमेन से ही आपको पुकारा, जैसे एक नाम होता है हर चीज का, वैसे ही इंटरनेट पे आपका जो नाम है दैट इज योर डोमेन, इसको कहते हैं। एंड दैट शुड बी द यूनिक टू यू। आप डोमेन केवल आप ही का हो सकता है, एंड यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। डोमेन शुड बी यूनिक टू यू। इट कैन बी शॉर्ट, sweet, easy to remember, easy to spell, and it should not have a special character। डोमेन के बीच में स्पेशल कैरेक्टर ना हो तो बहुत अच्छा है। 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, डोमेन जो होना चाहिए वो 15 कैरेक्टर्स का ही हो तो अच्छा है। डोमेन टॉप लेवल डोमेन हम कहते हैं .com, .in, .org, इन सारी चीज़ों को हम लोग टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। एंड यू कैन अगर .com मिल रहा है, इफ़ यू आर फाइंडिंग द .com, तो .com इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर। अगर .com नहीं मिलता है और आप इंडिया में ही टारगेट करना चाहते हैं, तो इवन यू कैन गो फॉर .in। सो डोमेन यू हैव टू बाय इट। डोमेन को आपको इसके रेंटल पे करने होते हैं। डोमेन में आपको रेंट पे करना होता है, ईयरली रेंटल पे करने होते हैं, राइट? इसमें टॉप लेवल डोमेन सर्च करना होता है। टॉप लेवल डोमेन दैट इज .com, .org, .movie। सो वी विल गो फॉर .com। अगर .com नहीं मिलता है तो .net ले सकते हैं, .net नहीं मिलता है .org ले सकते हैं, .online ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक यू कैन ऑल्सो गो फॉर अपने नाम को ही आप कुछ ऐसा चेंज कर दे कि .com मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल भावना डिजिटल, भावना ऑनलाइन। सो आई विल गिव यू सम टूल, जिस टूल को यूज करके भी आप डोमेन सर्च कर सकते हैं। So you can use this tool. I will show you to how to use this tool. Lean domain search, domain search, and instant domain search. Instant domain search. So इस दोनों टूल को यूज करके हम एक अच्छा नाम देख सकते हैं। So how you can use it? I will show you how you can use it. So लीन डोमेन सर्च में आप अपना नाम डालेंगे तो उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव दे देता है और यू कैन चूज फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव। सो टुडेज कल के सेशन में आने से पहले आपका डोमेन का नाम आपके पास 1, 2, 3 एटलीस्ट आपके पास आइडिया होने चाहिए।
और किस बेसिस पे होने चाहिए? डोमेन शॉर्ट, स्वीट, इजी टू रिमेंबर, इजी टू स्पेल, ब्रांडेबल इनफ मीन्स भावना बुटीक. तो बुटीक इज योर बिजनेस नेम, भावना इज द ब्रांड. सो इन दैट वे यू कैन क्रिएट अ नेम ब्रांडेबल इनफ, आप उसके अराउंड ब्रांड क्रिएट कर पाओ. बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड अगर आप उसमें डाल पाओ तो बहुत अच्छी बात है. और डोमेन का नाम आप इस तरीके से समझो कि जैसे हम बच्चे का जन्म होता है और हम नाम रखते हैं, तो कितना सोच समझ के नाम रखते हैं. लेकिन जब नाम रख दिया, लेकिन अब आगे बच्चा क्या करेगा, केवल नेम पे ही सारा कुछ डिपेंड नहीं होता है. नाम के अलावा उसे बहुत 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 काम करना पड़ता है. तो इन द सेम वे हम जो अभी हमारे जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो हमारा विजन है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा सर्विसेज है, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेम रखेंगे. लेकिन कल को आप नेम चेंज करना चाहें तो है, प्रोसेस है उसका, थोड़ा ट्रिकी होगा, लेकिन हम नेम चेंज कर सकते हैं. लेकिन नया डोमेन आपको बाय करना होगा और पुराने डोमेन से नया डोमेन पे फॉरवर्डिंग लगानी होगी. तो अभी हम लोग उसके बारे में नहीं बात करते हैं. अभी केवल है कि अभी हम डोमेन सर्च करने जा रहे हैं, तो जो बेस्ट डोमेन होगा वही लेंगे. एक बार आपने कहीं से भी डोमेन बाय कर लिया, लाइक गोडैडी से या बिग रॉक से या नेम चीप से. सो जनरली आई बाय फ्रॉम द नेम चीप. तो नेम कहीं से भी आपने डोमेन बाय कर लिया, फिर वो डोमेन किसी और के लिए अवेलेबल नहीं होता है, या किसी और ने डोमेन बाय कर लिया है तो वो डोमेन आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा. सो फॉर एग्जाम्पल भावना भरद्वाज .com मैंने बाय कर लिया है, तो भावना भरद्वाज .in आप बाय कर सकते हो, भावना भरद्वाज .org आप बाय कर सकते हो. तो टॉप लेवल डोमेन चेंज होने पे भी ये नाम अवेलेबल होता है. तो यू विल फाइंड सम ब्रांडेबल नेम. एंड कल आने से पहले आपके पास मिनिमम एक अगर एक हो तो बहुत अच्छी बात है, एक ना हो तो कम से कम 3 ऑल्टरनेटिव होने चाहिए. एंड वी कैन डिस्कस एंड यू कैन फाइनलाइज द नेम. तो नेम चीप से आप जाकर के डोमेन बाय कर सकते हैं. यू कैन बाय अ डोमेन. अगर आप खुद बाय कर लेते हैं, वेल एंड गुड. नहीं बाय करेंगे तो आई एम गोइंग टू शो यू टुमारो कि हाउ यू कैन बाय इट. सो इट्स अ नेम चीप. नेम चीप, उसके अलावा बहुत सारे गोडैडी, नो इट्स नॉट मैटर मच कि कहाँ से बाय कर रहे हैं. डोमेन रजिस्ट्रांट यूनिवर्सली मैनेज होते हैं, ये सारे के सारे एक तरह से डोमेन रजिस्ट्रांट जो है वो रिसेलर हैं. तो आप कहीं से भी बाय करते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन. बट फॉर द ईज ऑफ टेक्निकलिटीज को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि डोमेन और होस्टिंग एक ही जगह से बाय कर लें. राइट. सो यू मस्ट हैव अ डोमेन. एंड देन सेकेंड इज होस्टिंग. सो होस्टिंग इज व्हाट? डोमेन इज द नेम. डोमेन क्या है? आपका बिजनेस का नाम है. राइट. सो डोमेन जो हो गया आपका ऑनलाइन नाम हो गया. होस्टिंग एक ऑनलाइन स्पेस हो गई. जैसे हम बिजनेस अगर दुकान खोलेंगे, शॉप खोलेंगे, ऑफिस खोलेंगे, तो हमें एक फिजिकल स्पेस चाहिए जहां हम अपने बिजनेस के सारे प्रोडक्ट और सर्विस को रख सकते हैं, जहां आपके एम्प्लॉय बैठ सकते हैं. उसी तरह इंटरनेट पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक इंटरनेट के किसी कंप्यूटर पे स्पेस चाहिए जहां पे आप अपने डोमेन से रिलेटेड आप सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे. यानी जितने फाइल्स हो सकते हैं, जितने वेब पेजेस बनाने हैं, और जितने टेक्स्ट ऐड करना है, कोडिंग ऐड करना है, हेडर ऐड करना है, फुटर ऐड करना है, इमेजेस डालने हैं, ग्राफिक्स डालने हैं, वीडियोस डालने हैं, और लाइक ऑडियो डालना है, साइड बार की इंफॉर्मेशन है, फुटर की इंफॉर्मेशन है, हेडर की इंफॉर्मेशन है. तो जो कुछ भी आप अपनी वेबसाइट पे लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो पब्लिकली दिखाना चाहते हो, प्राइवेटली दिखाना चाहते हो, अगर इफ यू वांट कि कोई आपकी वेबसाइट पे आए और जो भी इंफॉर्मेशन आप दिखाना चाहते हैं, दैट वी हैव टू स्टोर और सेव ऑन सम कंप्यूटर. दैट कंप्यूटर इज योर होस्टिंग कंप्यूटर. होस्टिंग का जो काम होता है वो सेव एंड सर्व, दो ही काम होता है. सेव करना है, इंफॉर्मेशन को सेव करना, और सर्व करना. राइट. तो जब भी आप लाइक जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो उस कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं. और जब आपका ऑडियंस, आपकी लाइक whoever want to open your website, they will request for the information, bhavnabhardwaj.com, they will open request for that information. और जैसे ही आपका टारगेट या आपके विजिटर्स आपके डोमेन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? होस्टिंग के पास जाएगी. और होस्टिंग उस फाइल को निकाल करके वो सर्व करेगा. लोकल जो व्यूअर्स का सिस्टम है, जो यूजर का सिस्टम है, उस पर वो सर्व करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी जाके खोलूँ गोडैडी, तो गोडैडी का डेटा किसी और कंप्यूटर से पे सेव है, दैट इज द होस्टिंग कंप्यूटर. वो सेव करता है, और जैसे ही मैंने godaddy.com लिखा, रिक्वेस्ट गोडैडी के सर्वर के पास गई, और उस सर्वर ने उस फाइल के इंफॉर्मेशन को मेरे कंप्यूटर पे शो कर दिया, दैट इज द सर्व कर दिया. तो शो, सेव एंड सर्व,
सेव एंड सर्व। बेसिक जो होस्टिंग का काम है वो सेव करना और सर्व करना। अगर आपकी होस्टिंग बंद तो फिर आपका बिजनेस बंद, क्योंकि आपकी दुकान बंद। जैसे आप अभी सारे मॉल बंद हैं, कोरोना में सारे मॉल बंद हैं, तो मॉल अगर बंद है तो मॉल के अंदर की सारी दुकानें भी बंद हैं। उसी तरह होस्टिंग कंप्यूटर अगर डाउन है तो उस होस्टिंग कंप्यूटर पे वेबसाइट के जितने जितने वेबसाइट होस्टेड है सारी वेबसाइट बंद है। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेट, एंड दैट्स व्हाई वी आर रेडी टू पे फॉर द होस्टिंग, वी आर रेडी टू पे फॉर द हायर। मतलब आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे शुरुआत में थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी लर्निंग फेज है, ओके यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ, बट एज यू आर ग्रोइंग एज अ बिजनेस, जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे तो होस्टिंग कैन बी योर वन ऑफ द रिकरिंग कॉस्ट, जहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि होस्टिंग से आपकी वेबसाइट का स्पीड भी डिपेंड करता है कि होस्टिंग कितना फास्ट आपके इंफॉर्मेशन को सर्व करता है। So like whenever you are selecting the hosting, you can select on the basis of on the basis, what basis you are going to select, you can select on the basis of की speed क्या है, जिस होस्टिंग को आप लेंगे उस होस्टिंग की स्पीड क्या है, उस होस्टिंग का में कितना स्पेस आप ले रहे हैं, उस होस्टिंग का बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ 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 क्या है, एंड उस होस्टिंग का अप टाइम क्या है, राइट। इन सारे के बेसिस पे उस होस्टिंग की कॉस्ट क्या है, उस होस्टिंग की सिक्योरिटी कितनी है, लोकेशन कैन बी ऑल्सो अ डिसाइडिंग फैक्टर कि होस्टिंग किस लोकेशन पे है। वी प्रेफर कि जहां हमारे टारगेट ऑडियंस है उस लोकेशन पे अगर मुझे होस्टिंग मिल जाए तो बेटर होता है। तो इन सारे बेसिस पे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट होस्टिंग ऑप्शंस होते हैं वो स्पीड फास्ट होनी चाहिए। बैंडविड्थ का मतलब है कि एक साथ साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट कितने हैंडल कर सकते हैं। स्पीड का मतलब है कितना फास्ट डेटा सर्व कर सकता है। अभी मैंने रिक्वेस्ट किया और कितना फास्ट मैंने अपने पे क्रोम खोला और डाला godaddy.com, और रिक्वेस्ट जो गई वो गोडैडी के यूएस सर्वर पे गई। यूएस में एक कंप्यूटर है जहां गोडैडी का डेटा सेव है, और रिक्वेस्ट उस गोडैडी के सर्वर यूएस सर्वर पे गई, और रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद उस डेटा को, उस फाइल को उसको सर्व करने में कितना टाइम लगा, मीन्स वो फाइल गोडैडी से उठ के मेरे कंप्यूटर पे सर्व हुई, इस पूरे सर्व करने में गोडैडी उस सर्वर को कितना टाइम लगा, दैट इज योर स्पीड। तो स्पीड हम चाहते हैं कि बहुत फास्ट ऑफ द फास्टेस्ट हो, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पीड फास्ट होनी चाहिए। बैंडविड्थ, होस्टिंग की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। बैंडविड्थ, जैसे गोडैडी को एक साथ 1000 लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या वो कंप्यूटर 1000 लोगों को एक साथ सर्व कर पा रहा है? अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी बैंडविड्थ लो है। फॉर एग्जाम्पल IRCTC में आप बुकिंग कराते हैं और तत्काल के समय वो केवल गोल 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 घूमता रहता है, और that is because simultaneously so many people are requesting for the same page, same information, or hosting server is not they don't have enough resources to serve all those requests. So that's why bandwidth is one of the reason we always go for the unlimited bandwidth मिल जाए। यू माइट नो दैट कि CBSE का रिजल्ट आता है तो होस्टिंग बिल्कुल क्या कंप्यूटर क्रैश, वो होस्ट क्रैश होने लग जाता है। किसी कोई भी IIT और कोई भी ऐसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जब एक साथ बहुत सारे लोग एक ही पेज के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, तो होस्टिंग कंप्यूटर सारे रिक्वेस्ट को एक साथ सर्व नहीं कर पाता, राइट। सो दैट्स वाई, तो कभी कभी की बात हो गई, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे कंसिस्टेंट बहुत सारे ट्रैफिक आ रहे हैं तो आपको अपना होस्टिंग सर्वर होस्टिंग सर्वर का बैंडविड्थ बहुत हाई होना चाहिए। तो इनिशियली इफ यू आर क्रिएटिंग योर वेबसाइट और अभी आपके पास बहुत ज़्यादा बहुत ट्रैफिक नहीं होगा, तो इवन यू कैन गो फॉर दी वर्डप्रेस होस्टिंग। आई वुड सजेस्ट कि अभी राइट नाउ वी विल लुक फॉर दी वर्डप्रेस होस्टिंग। अभी क्योंकि हम लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रहे हैं तो हम जो चूज करेंगे वो वर्डप्रेस होस्टिंग चूज करेंगे। वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग मीन्स हमें पता है कि हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस में बननी है, तो वर्डप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्टिमाइज्ड होस्टिंग सर्वर होगा वो हम लेंगे। अदरवाइज फ्यूचर में बहुत सारे लोग शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं, बहुत सारे लोग VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लेते हैं, बहुत सारे लोग डेडिकेटेड होस्टिंग लेते हैं, बहुत सारे लोग क्लाउड होस्टिंग लेते हैं।
तो इस तरह के बहुत सारे होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। अभी यू कैन स्टार्ट विद वर्डप्रेस होस्टिंग, ग्रेजुअली यू कैन मूव टू द शेयर्ड होस्टिंग, देन यू कैन गो टू द डेडिकेटेड, देन यू गो टू द वीपीएन, देन यू कैन गो टू द क्लाउड। और इन सारे में जैसे जैसे आप अपग्रेड कराएंगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन होस्टिंग की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वी विल गो फॉर दी वर्डप्रेस होस्टिंग। ऑलमोस्ट जितने भी डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर हैं और वेब सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्योंकि वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, 34% वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग सारे होस्टिंग प्रोवाइडर देते हैं। मीन्स वो होस्टिंग जो एक्सक्लूसिवली वर्डप्रेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, वर्डप्रेस को अच्छी स्पीड देने के लिए ऑप्टिमाइज है, उसको हम लोग कहते हैं वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग। तो वी कैन गो फॉर दी वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग। फॉर जो कल हम लोग लेंगे, जिन्होंने डोमेन होस्टिंग लिया हुआ है वेल एंड गुड, दे कैन कंटिन्यू विद दैट। जिन्होंने नहीं लिया हुआ है वो कल लेंगे, और जब वो लेंगे तो वी विल गो फॉर वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग। कहीं से भी लें, डोमेन नेम चीप से ही कंटिन्यू कर ले, या गोडैडी से ले ले, ब्लू होस्ट से ले ले, होस्टगार्टर से ले ले, कहीं से भी ले सकते हैं। आई प्रेफर WPX और ब्लू होस्ट, या तो WPX से ले सकते हैं, ब्लू होस्ट से ले सकते हैं। गोडैडी इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। गोडैडी में थोड़ी अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आप एक प्रोडक्ट लेने जाओ वो बहुत सारे प्रोडक्ट रिकमेंड करने लग जाता है, तो कुछ नए लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट्स वाई आई प्रेफर कि या तो आप नेम चिम से ही कंटिन्यू कर लो, जहाँ से डोमेन लिया है वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। WPX थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन क्वालिटी वाइज इन सारे के बीच में सबसे बेस्ट जो है वो WPX होस्टिंग है। एंड मॉडरेटली गोडैडी, ब्लू होस्ट सब एक ही रेंज के हैं, तो या तो गोडैडी से ले लें या ब्लू होस्ट से ले लें, दैट्स परफेक्टली फाइन। और आपके पास ऑलरेडी कोई होस्टिंग है, यू कैन कंटिन्यू विद दैट होस्टिंग एज वेल। सो वी विल गो फॉर टुमारो। अगर आपके पास होस्टिंग है या ले सकते हैं, फैंटास्टिक, आप उनके साथ आएंगे, नहीं है तो कल हम लोग अपने क्लास में अपना बनाएंगे होस्टिंग खरीदेंगे, एंड आई विल शो यू। सो देन होस्टिंग के बाद यू हैव टू कॉन्फ़िगर द डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग को लिंक करना होता है। तो अगर डोमेन और होस्टिंग एक ही सर्वर से ले रहे हैं, फ्रॉम सेम सर्वर, अगर सेम सर्वर से ले रहे हैं तो आपको किसी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। केवल आप मैनेज होस्टिंग में जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, और दे विल लिंक द डोमेन एंड होस्टिंग। आप अपने डोमेन का नाम प्रोवाइड करेंगे एंड इट विल टेक 1-2 मिनट टाइम एंड दे विल लिंक इट। बट अगर डोमेन और होस्टिंग अलग अलग से आपने लिया हुआ है, डोमेन कहीं और से लिया है, होस्टिंग कहीं और से लिया हुआ है, तो उसमें आपको नेम सर्वर अपडेट करना पड़ता है, नेम सर्वर अपडेट। So for if your domain and hosting is domain and hosting at from different provider, from different provider, तो उस केस में अगर आपका डोमेन कहीं और से लिया हुआ है, तो डोमेन आपको एक नेम सर्वर का, आपकी जो होस्टिंग है वो आपको एक नेम सर्वर का इंफॉर्मेशन देंगे। यानी जो होस्टिंग है उस कंप्यूटर का एक एड्रेस है, जहाँ पे आपको अपना डेटा होस्ट करना है, उस कंप्यूटर का एक इंटरनेट पे एक एड्रेस है, उस एड्रेस को हम लोग बोलते हैं नेम सर्वर। इंटरनेट पे जितने भी सर्वर हैं, हर सर्वर का एक अपना यूनिक एड्रेस है, वो IP एड्रेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेम सर्वर। उस कंप्यूटर का नेम सर्वर का एड्रेस उठा करके हमें डोमेन के साथ लिंक करना पड़ता है। तो जब भी डोमेन को कोई रिक्वेस्ट करेगा, वो डोमेन डायरेक्टली जो आपने नेम सर्वर का एड्रेस डाला है, जो आपने अपने होस्टिंग का एड्रेस डाला है, वो उनसे कनेक्ट हो जाता है। तो डोमेन और नेम सर्वर को लिंक करना जरूरी है। तो अगर सेम ही जगह से आपने लिया हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वन स्टेप प्रोसेस। सो इस केस में आपने नेम सर्वर को हमें अपडेट करना होगा, राइट। सो वी विल लुक इनटू दैट। अगर आपका डोमेन होस्टिंग अलग अलग है तो मैं उसको लिंक करा दूंगी, और एक ही जगह है तो 2 स्टेप प्रोसेस में आपका डोमेन और लिंक हो जाएगा, राइट। एंड यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, बट अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली कि सर्वर जहां आपका डेटा सेव हो रहा है, डोमेन आपके उस डेटा का एक कॉमन नाम है। तो लोगों को डोमेन का नाम ही पता है, जैसे ही वो डोमेन सर्च करेंगे, वो डोमेन उस यूजर के कंप्यूटर को सर्वर के कंप्यूटर से कनेक्ट कर देगा, और वो यूजर का कंप्यूटर डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, और सर्वर जो है उस डेटा को सर्व करेगा। तो वो जो सर्वर है जहां से आपने डोमेन लिया है वहीं से ले सकते हैं, या सर्वर आप कहीं और से ले सकते हैं, डोमेन का नाम कहीं और से ले सकते हैं। अगर सर्वर कहीं और है, डोमेन कहीं और है, तो उस केस में सर्वर का एड्रेस,
द सर्वर के एड्रेस का नाम है नेम सर्वर। तो उस एनएस रिकॉर्ड को कहते हैं, नेम सर्वर के डेटा को आपको डोमेन से जाके लिंक करना पड़ता है। इट्स वेरी इजी टू डू दैट, आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। एंड देन वी विल इंस्टॉल वर्डप्रेस। उसके बाद वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस हम डायरेक्ट सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यू कैन गो टू द wordpress.org टू डाउनलोड। अगर आपको वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर चाहिए तो wordpress.org पे जाएंगे, वहां से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे एंड देन इंस्टॉल टू सर्वर। और ये आप वर्डप्रेस केवल और केवल सर्वर इन्वायरमेंट में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। मीन्स वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप उसको अपने लोकल सिस्टम पे तब तक इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अपने लोकल सिस्टम को सर्वर में नहीं कन्वर्ट कर दें। सो इट्स इज ऑल्सो पॉसिबल। बहुत सारे लोग सीखने के लिए क्या करते हैं कि अपना लैपटॉप को ही सर्वर इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। देयर इज अ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर दैट, जैम्प सर्वर इसको बोलते हैं। तो जैम्प सर्वर को यूज करके इस अपने लोकल सिस्टम को, अपने डेस्कटॉप को, अपने लैपटॉप को एक सर्वर के तौर पे कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उस सर्वर इन्वायरमेंट में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर कहाँ से लेंगे? वर्डप्रेस फ्री था, फ्री है और फ्यूचर में भी फ्री रहेगा। wordpress.org से आप वर्डप्रेस का फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने लोकल सिस्टम को अपना सर्वर बनाया हुआ है वहाँ इंस्टॉल करेंगे, या कहीं आपने डेडिकेटेड सर्वर और लाइक क्लाउड होस्टिंग और किसी भी तरह का सर्वर कहीं और लिया हुआ है तो वहाँ पर जाकर के सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। दिस इज द वन प्रोसेस। बट अगेन आई वुड से कि वर्डप्रेस इतना पॉपुलर है कि ऑलमोस्ट ऑल होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर गिव यू वन क्लिक इंस्टॉलेशन। वन क्लिक इंस्टॉलेशन। तो जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर हैं वो वन क्लिक इंस्टॉलेशन आपको दे देते हैं। जैसे ब्लू होस्ट में जाएंगे तो जैसे ही आपके पास अगर जहां से आपने डोमेन ऑन होस्टिंग लिया है, होस्टिंग का एक्सेस करेंगे, वहीं पे एक ऑप्शन होता है कि इस होस्टिंग में क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे एंड यू हैव टू गिव द अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यू हैव टू जस्ट गिव द अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फो मीन्स ईमेल आईडी क्या होगा, नेम क्या होगा, डोमेन कौन सा है। तो ये आप बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे अपनी वेबसाइट से और वन क्लिक इंस्टॉलेशन हो जाता है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बहुत टफ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा सर्वर है और जहां वन क्लिक इंस्टॉलेशन नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप वर्डप्रेस अपलोड करके तब इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, सो वी विल लुक इनटू दैट। कल का जो काम है वो हम वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर लेंगे, डोमेन बाय कर लेंगे, होस्टिंग बाय कर लेंगे, डोमेन और होस्टिंग को लिंक कर देंगे और उस पर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे। एंड देन वी विल गो फॉर दी, ऑल दीज आर दी वन टाइम जॉब। ये बेसिक सिस्टम जो मैं बता रही हूँ ये सारा का सारा वन टाइम जॉब है। वन टाइम जॉब है, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। बार बार डोमेन, बार बार होस्टिंग, बार बार इंस्टॉलेशन, बार बार करने की जरूरत नहीं है। वन टाइम, एक वेबसाइट के लिए एक बार करने की जरूरत है। तो अगर आपके पास 5 वेबसाइट है तो हर वेबसाइट के लिए हर बार करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फॉर एक वेबसाइट के लिए एक ही बार करने की जरूरत है। तो एक बार में एक और ऑप्शन है कि आप थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम इंस्टॉल मीन्स, थीम क्या होता है? वर्डप्रेस में थीम बेस्ड वेबसाइट बनती है। वर्डप्रेस में जब भी आप वेबसाइट बना रहे हैं तो किसी ना किसी थीम के यूज करके बनेगी। So theme is the website template. Website template. Website template means बनी बनाई वेबसाइट। आपको एक बना बनाया वेबसाइट मिलता है एंड आप उसी वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं। तो किस तरह का, जैसे फॉर एग्जांपल घर लेना है तो अपार्टमेंट्स में हम जाकर के अपना फ्लैट सेलेक्ट करते हैं। तो सिंपल फ्लैट जाके देखते हैं, सिंपल फ्लैट अगर पसंद आता है तो हम घर बुक कर लेते हैं। तो इन द सेम वे बनी बनाई वेबसाइट आपको मिलेगी। अगर विला है तो विला एक अलग टेम्पलेट होगा, अगर 2 BHK है तो अलग टेम्पलेट होगा, 3 BHK है तो अलग टेम्पलेट होगा, अगर ऑफिस स्पेस है तो उसका अलग टेम्पलेट होगा। इन द सेम वे आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी है, आपको योगा के लिए वेबसाइट बनानी है तो उस तरह का थीम लेंगे। मुझे ई लर्निंग के लिए लाइक ई अपना कोर्स बनाने के लिए वेबसाइट बनानी है तो अलग तरह का टेम्पलेट लेंगे। अगर मुझे अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए वेबसाइट बनानी है तो अलग तरह का टेम्पलेट लेंगे। तो जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसा हम अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज, अपने बारे में, अपनी जिस तरह का विजन हमारे पास वेबसाइट में है उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड द टेम्पलेट। तो अभी अभी जो मैंने इस बैच के लिए, आई वांट यू टू लॉन्च योर वर्जन 1, तो वी हैव डिसाइडेड वन टेम्पलेट। वी विल ऑल ऑफ वर्क ऑन दैट टेम्पलेट, बट इट्स टोटली परफेक्टली फाइन, इट यू कैन यूज एनी टेम्पलेट। तो हर टेम्पलेट का एक अपना लर्निंग कर्व होगा, हर टेम्पलेट को सीखने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है।
तो अभी हम लोग एस्ट्रा, अभी जो हम लोग थीम यूज करेंगे वो एस्ट्रा थीम यूज करेंगे। एस्ट्रा थीम इज द कलेक्शन ऑफ द थीम। आप एस्ट्रा में, अगर एस्ट्रा में जाते हैं तो एस्ट्रा के अंदर एक स्टार्टर टेम्पलेट होता है, स्टार्टर टेम्पलेट होता है, और उस स्टार्टर टेम्पलेट में बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, योगा के लिए, मेडिटेशंस के लिए और ई कॉमर्स के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। उसी टेम्पलेट में से आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि एक्स्ट्रा भी फ्री में, फ्री वाला अवेलेबल है। तो वी विल लुक इनटू दैट कलेक्शन ऑफ स्टार्टर टेम्पलेट एंड वी विल चूज वन ऑफ देम। तो आपको अगर प्रोसेस समझ में आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड इंस्टॉल एस्ट्रा थीम एंड देन इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट। एंड स्टार्टर टेम्पलेट के कलेक्शन में से स्टार्टर टेम्पलेट का जो पेज होगा वो एलिमेंटोर से आपकी उसकी एडिटिंग होगी। तो एलिमेंटोर यूज करके आप स्टार्टर टेम्पलेट सेलेक्ट करके उस पर भी काम कर सकते हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स। कल का जो सेशन होगा, कल के सेशन के एंड तक में सबके पास, सबका डोमेन बाय होना है, सबका होस्टिंग बाय होनी है, सबका डोमेन होस्टिंग लिंक होना है, सब पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होना है और सब पे थीम इंस्टॉल हो जाना है। तो ये सारा वन टाइम जॉब खत्म हो जाएगा। फिर विल लुक इनटू द रिकरिंग जॉब। तब हम लोग रिकरिंग जॉब पे पेजेस बनाना, पोस्ट बनाना, इस पे हम लोग मूव करेंगे। कल के लिए एक्शन स्टेप क्या है, ये तो कंसेप्ट हो गए। ये कंसेप्ट को आपको समझ के आएंगे। इस कंसेप्ट पे जो एक्शन होगा वो हम लोग क्लास में लेंगे, डोमेन बाय कैसे करते हैं। लेकिन आपको अपने एंड से जो एक्शन करके आने हैं, वो एक्शन करके आना है कि थोड़ा रिसर्च करके आना है। व्हाट व्हाई कॉल टू एक्शन, व्हाट व्हाई कॉल टू एक्शन। so what why call to action means, right? So what kind of website you want to create? Go and find you can find three inspiration website. Come with three inspiration website. All of you will come with three inspiration website. कल आने से पहले सबके पास 3 इंस्पिरेशन वेबसाइट होनी चाहिए। 3 इंस्पिरेशन वेबसाइट का मतलब एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि इस तरह की वेबसाइट मुझे बनानी है। एक मोटा मोटा आइडिया, आप जहाँ जो जिस भी वेबसाइट को विजिट करते हैं और वहाँ आपको लगता है कि हाँ इस तरह की वेबसाइट मुझे भी बनानी है, तो उस तरह की 3 वेबसाइट आप रिसर्च करेंगे, उसको उस पर देखेंगे उसका हेडर कैसा है, उसका फुटर कैसा है, उसका साइड बार कैसा है, उसमें पेजेस कौन से हैं, उसका मेन्यू कैसा है, उसके मेन्यू के अंदर सब मेन्यू कैसा है, उसके फुटर में कौन कौन से मेन्यू डले हुए हैं, उनका ब्लॉग सेक्शन कैसा है, उसका कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे हैं, उसके सर्विसेज पेजेस कैसे हैं। तो इस तरह का किसी भी जो भी आपकी इंस्पिरेशन वेबसाइट है उस पर आप उसको थोड़ा सा ओपन करके रिसर्च करके उसके उन तीनों वेबसाइट का जो पैटर्न है, जो फीचर्स का पैटर्न है, उसको नोट डाउन करके आप आ सकते हैं कल। तो कल एटलीस्ट सबको अपनी 3 वेबसाइट रिसर्च करके लानी है। सो दैट इज योर व्हाट, किस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं। इससे मुझे ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं। कोई हेल्थ पे बनाना चाहता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग पे बनाना चाहता है, कोई एविएशन पे बनाना चाह सकता है, कोई ई लर्निंग पे बनाना चाह सकता है, कोई अपना कोर्स अपनी वेबसाइट पे अपना कोर्स के लिए डाल सकता है, कोई 1-to-1 कंसल्टेंसी के लिए डाल सकता है, कोई लीड जनरेशन के लिए डाल सकता है। तो इट कैन बी एनीथिंग, बट यू कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट यू वांट टू क्रिएट। तो कल 3 इंस्पिरेशन, दिस इज योर फर्स्ट एक्शन स्टेप। कम विथ 3 इंस्पिरेशन वेबसाइट। सेकेंड, यू विल डिसाइड गोल ऑफ योर वेबसाइट। what you want, अपनी वेबसाइट से आपको क्या चाहिए। डू यू आर यू लाइक इस रिसर्च में ही यू कैन ऑल्सो डिसाइड अबाउट कि विच टाइप ऑफ वेबसाइट यू आर गोइंग टू क्रिएट। आर यू गोइंग टू क्रिएट वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन शेयर के लिए आप बनाना चाह रहे हैं, और आने वाले टाइम में एक ही वेबसाइट में हम लोग सारी चीजें करेंगे। आने वाले टाइम में एक ही चीज के लिए हम लोग एक ही वेबसाइट पे प्रोडक्ट भी सेल करेंगे, ई कॉमर्स भी सेल करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी के लिए वी विल टेक वन पावर ऑफ वन, दैट एक तरह का एक प्रोडक्ट को लेके काम करेंगे। सो वी कैन थिंक ऑफ कि इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, या लाइक लीड जनरेट करना है, या फिर कंसल्टेंसी देनी है, या सिंपली अपना अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना है, अपने आप को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करना है, ब्रांड प्रेजेंस बनाना है, या सीवी के लिए बनाना है, सिंपली आपको जॉब अप्लाई करने के लिए अपनी ऑनलाइन सीवी आप बना रहे हैं। तो एक थोड़ा बहुत आइडिया आप लेके जाएंगे। ग्रुप कोचिंग आप देना चाहते हो, ग्रुप कोचिंग। सो व्हाट काइंड ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया सिंपली ब्लॉग। आप कह सकते हो कि ब्लॉग वेबसाइट एक्सक्लूसिवली मुझे तो ब्लॉग ही लॉन्च करना है, या मेरे पास मैं कंसल्टेंसी 1-to-1 कंसल्टेंसी देता हूँ, मुझे कंसल्टेंसी के लिए लीड जनरेट करनी है,
या फिर मैं ग्रुप कोचिंग देता हूँ, मुझे ग्रुप कोचिंग के लिए बैच क्रिएट करना है, या मैं जॉब में हूँ, मुझे प्रमोशंस के लिए या जॉब चेंज के लिए अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना है, या मैं स्पीकर, ऑथर, ट्रेनर, कोच, डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट कुछ भी हूँ, उसके तो उस आइडेंटिटी के तौर पे अपने आप को मुझे एस्टैब्लिश करना है, या एक्सक्लूसिवली किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना है कि लोग आए और ईमेल आईडी, फोन नंबर दे के जाएं। तो यू कैन थिंक ऑफ कि किस तरह की वेबसाइट आपको लॉन्च करनी है। तो ये आप रिसर्च करके आएंगे और इस रिसर्च के अकॉर्डिंग 3 इंस्पिरेशंस वेबसाइट निकाल के लाएंगे, एंड देन यू विल डिसाइड द गोल ऑफ द वेबसाइट कि उस वेबसाइट पे आपका मतलब व्हाई एनीवन शुड कम टू योर वेबसाइट। आप उनको ऐसा क्या दे रहे हैं जो कहीं और नहीं मिल रहा है, मतलब आपके अंदर ऐसा क्या है, आपकी वेबसाइट के अंदर ऐसा क्या है, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज में ऐसा क्या है जो कहीं और नहीं मिल रहा है। तो आई वुड सजेस्ट इट कैन बी योर यूएसपी। USP is unique selling proposition. So you can find your unique selling proposition, your why. So आप कितने old like number of years, कितने old company हो, या number of customers कितने हैं, number of customers कितने हैं, या number of offices कितने हैं, number of offices कितने हैं, या आपके पास total number of experience कितना है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है। प्लीज ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास यूनिक है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास यूनिक है, चीप है, बेस्ट है, कोई ऐसी चीज जो आप यूनिकली प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यू कैन थिंक ऑफ कि व्हाट इज योर यूएसपी, हाउ ओल्ड यू आर, हाउ लाइक आपकी कंपनी, आपके एसोसिएशंस कहाँ पे हैं, कोई गवर्नमेंट एसोसिएशंस है। सो आप अपने उस whatever you want to highlight, whatever you want to use to win the trust of your customer, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपके ऊपर भरोसा हो जाए लोगों को। तो आपके पास कोई अवार्ड और रिकॉग्निशन है, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन है, या आपने अभी तक 10,000 कस्टमर, अभी तक आपने ले सपोज 100 कस्टमर को सर्विस दिया हुआ है, तो दैट 100 कस्टमर सर्व सो फार, या अभी तक आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, so you can say that कि 10 years का experience है, so that you can say that कोई award, कोई recognitions मिला है, आपके इतने offices हैं, अगर आप कहें कि मेरे पास 5 offices हैं, so you can think also कि आपके पास 5 offices हैं या 3 offices हैं, number of employees is impressive, you can say that number of employee ये हैं, so you can think of कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप अपने यूजर के सामने अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। So you can use this trust factor, and then call to action. Call to action is all about कि what you want your user to take action. आप यूजर से एक्शन क्या लेना चाहते हैं, आपको अभी क्या क्या तैयार करके आना है। 3 इंस्पिरेशन की वेबसाइट निकाल के लानी है, आपका अपना यूएसपी क्या है, ये सारा आप नोटपैड में करेंगे, मीन्स वर्ड में या गूगल डॉक में या MS वर्ड में। 3 इंस्पिरेशन की वेबसाइट निकालेंगे, आपकी ऑफरिंग क्या है उसको निकाल के लाएंगे, और कॉल टू एक्शन मीन्स एंड यूजर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड यूजर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सब्सक्राइब कर ले, आपके इंफॉर्मेशन वेबसाइट को सब्सक्राइब कर ले, या आपके कोर्सेज में इनरोल कर ले, या आपके वेबिनार में रजिस्टर कर ले, या आपके ई बुक को डाउनलोड कर ले, ई बुक्स को, या हो सकता है वो ई बुक हो सकता है, वो ब्रोशर्स, कैटलॉग कुछ भी डाउनलोड कर ले, या फिर आपके प्रोडक्ट को बाय कर ले। So you can, what call to action, what action you are expecting from end users. So you can make a small note, 1 2 3 note आप बना सकते हैं, buy now और register now और free claim your free trial और enroll now। इस तरह का कुछ आप कॉल टू एक्शन भी सोच के आ सकते हैं। तो क्या क्या सोच के आना है, 3 इंस्पिरेशन वेबसाइट निकाल के लानी है, कम से कम 3 यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस निकाल के लाना है, और कम से कम 3 कॉल टू एक्शन निकाल के लाना है, राइट। उसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये सर्विसेज भी हो सकती है। आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज है, या आपका इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन की क्या कैटेगरी हो सकती है, तो आपके पास, आप अपनी वेबसाइट पे किस चीज को प्रेजेंट करने वाले हैं,
प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, प्रोडक्ट को और लोगों ने यूज किया हुआ है, इसका सोशल प्रूफ, टेस्टिमोनियल, फीडबैक आप दे सकते हैं। उस प्रोडक्ट पे को अगर कोई लेना चाहता है तो कॉल टू एक्शंस क्या होगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेजेस क्या होंगे। अगर एटलीस्ट एक प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट वन प्रोडक्ट, so if you are providing one to one consultancy, so you can ask for okay, book your one to one consultancy or book your clarity call with me। तो कुछ ना कुछ आपके पास है देने के लिए, वो क्या है, क्या आप दे रहे हैं। सो आप अपने प्रोडक्ट का, एक प्रोडक्ट का, यू कैन मेक बिगर लिस्ट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल आने से पहले आपके पास एक प्रोडक्ट की क्लैरिटी हो कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट के एक आध दो इमेजेस आपके पास होने चाहिए, उस प्रोडक्ट का एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। उस प्रोडक्ट को किसी ने अगर यूज किया है तो सोशल प्रूफ ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यू विल कम अप विद द प्रोडक्ट आइडिया कि किस क्या आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट, व्हेन आई एम सेइंग प्रोडक्ट, इट कैन बी प्रोडक्ट, इट कैन बी सर्विसेज, इट कैन बी कोर्स, इट कैन बी इंफॉर्मेशन, right? And apart from that, you will also get to know कि for whom you are creating this website, आप ये वेबसाइट बना किसके लिए रहे हैं, right? Who is your target audience, who is your target audience? उस टारगेट ऑडियंस का बर्निंग क्वेश्चंस क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उनका एज क्या है, उनका लोकेशन क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। So the best target audience for this is the ideal way to find your target audience, जाके अपना चेहरा आप अपने आप को मिरर में देख लें। So best way to identify your target audience कि whoever you are, whatever struggles you are going through, you can go and find the similar kind of target audience in the market. This is the one way. Other way, आपके पास ऑलरेडी कुछ टारगेट ऑडियंस हैं, ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स हैं, तो गो एंड फाइंड द बेस्ट कस्टमर। उस 20 कस्टमर लिस्ट में से या 10 कस्टमर लिस्ट में से कोई एक, दो या तीन ऐसे कस्टमर्स को आप निकालो जो बेस्ट हैं, जो आपको मतलब यू आइडेंटिफाई कि ये दे आर द कमिटेड पीपल, दे आर द डिटरमिन्ड पीपल, they can actually take advantage of my product and services. So you can go and identify that person and you will note down their characteristic. So for me, let's suppose you are my course taker, तो I can go and study your characteristic. I can see that कि किस तरह के लोग मेरे कोर्स को ज़्यादा ले रहे हैं, उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनके डिजायर्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका पेन पॉइंट्स क्या है, और उसके बेसिस में मैं वैसे ही और लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगी। मैं आपके पेन पॉइंट्स को ही एड्रेस करता हुआ अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालने की कोशिश करूंगी, राइट? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। सो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। सो हियर दिस इज द एक्शन स्टेप। आपको तीन रिसर्च करके 3 इंस्पिरेशन की वेबसाइट निकालनी है, 3 यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस लिख के लाना है, 3 कॉल टू एक्शन लिख के लाने हैं, एक प्रोडक्ट की डिटेल्स लेके आनी है, और आपको तो मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। So if you are coming with this, we are good to go with this. We are going to start with tomorrow, right? And here that I'm expecting that कि आप ये थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन यह काम करके आएंगे आप। फिर डे 2, डे 3 मैं धीरे धीरे अनफोल्ड करूंगी कि और डे 2 में हम लोग क्या करेंगे, डे 3 में क्या करेंगे। So we will unfold one by one. Right now I'm not going into details, but we will do all these things day by day, and then we are also want to I also want you to work on the mindset। ये काम करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप अपने पास एक गोल कार्ड रखते हैं। गोल कार्ड means I am having a best website in this industry, or I am going to launch my version 1 of the website on this date, or version 2 on this date, और my website, कुछ वेबसाइट से रिलेटेड एक गोल कार्ड आप कहीं लिख के रख सकते हैं, उसको आप हमेशा देख सकते हैं। दैट विल बी द वन दैट विल हेल्प यू टू बी फोकस्ड। हमारे जितने भी सेशंस होंगे उसको सेशन को आप जरूर अटेंड करेंगे। जो सैटरडे का लाइव सेशन होगा उसको आप अटेंड करेंगे। एक वीडियो है 30 मिनट्स का, स्ट्रेंजर सीक्रेट्स बाय अर्ल नाइट एंगल। मैं उसका लिंक शेयर करूंगी ग्रुप में। आई वुड सजेस्ट कि वो वीडियो आप 7 डेज हमारा सेशन चलेगा, 7 डेज एवरी डे वो 30 to 40 मिनट्स का जो वीडियो है उसको एवरी डे आप जरूर सुने एंड रीड द एफर्मेशन कि आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड whatever affirmation, my website is one of the best website, or I'm helping thousands of users with my website, or hundreds and hundreds of users finding my website very useful, I'm serving this world with my website।
इस तरह के जितने भी एफर्मेशंस हो सकते हैं, आप एफर्मेशन नोट करके उसको आप डेली रीड कर सकते हैं. दिस विल रियली रियली हेल्प यू एंड मेक योर जर्नी टोटली स्मूथ. आप एफर्टलेसली आप काम कर पाएंगे. So this is the pillar of you can say that pillar of mindset. You can work towards this. And then this is the three level of journey. Level 1 mein you are creating your digital presence. In level 2 is a next level of program. This is not included in this level. अभी website creation में attract traffic part नहीं included है, या level 3 में monetization वाला part अभी included नहीं है. Though I'm giving you all the details, लेकिन practical implementation level 2 और level 3 का like level 2 program में होगा, level 3 program में होगा. Right now we are working on the foundation, setting up our digital presence. तो अभी हम लोग level 1 पे ही focus करेंगे. But once your website is ready to sell the product, once your website is done, then you can start attracting the traffic. So अब हम लोग ट्रैफिक कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ट्रैफिक अट्रैक्शन ब्लूप्रिंट एक नेक्स्ट लेवल का कोर्स होगा, तो आप चाहें तो उस कोर्स में भी कंटिन्यू करेंगे, राइट. सो वी विल अट्रैक्ट द ट्रैफिक एंड देन वी विल मोनेटाइज इट. At the end of the day, I want this website should give you lot of money, right? So ultimate at the end of the day, I want this website should be the source of multiple source of income. इस वेबसाइट पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करो, किसी और के प्रोडक्ट को रिकमेंड करो, एड स्पेस सेल करो, कोलैबोरेशंस करो, लाइक लीडरशिप काउंसिल्स डेवलप करो. इस तरीके से देयर आर हंड्रेड्स वे टू मेक मनी. बट फॉर दैट आपकी वेबसाइट इनवाइटिंग होनी चाहिए, आपके पास बहुत सारे ट्रैफिक होने चाहिए, और तब हम लोग मोनेटाइजेशन पे जाते हैं. तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इज द जर्नी. आपने वेबसाइट स्टार्ट किया है, आपने डिजिटल जर्नी स्टार्ट की है, तो यू हैव टू कीप दैट विजन इन माइंड कि केवल वेबसाइट बनाने से नहीं होगा, इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे ट्रैफिक भी लाना पड़ेगा. उसके बाद उसके थ्रू उस ट्रैफिक को हमें अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के थ्रू सर्व भी करना होगा. So this is the path you may follow in the future with me or with anyone else. Some of the reason I want this ki everyone should keep in mind ki we are creating this website to minimize the dependency. कि हम वेबसाइट बनाते हैं लाइक जिससे भी बनवाते हैं, हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं बन पाता है, फिर हर छोटे चेंज के लिए हमारी डिपेंडेंसी किसी और पे रहती है. तो वो डिपेंडेंसी को मिनिमाइज किया जाए. जो रिपीटेटिव जॉब है फ्यूचर में आप उनको आउटसोर्स करेंगे, लेकिन आपके पास भी उतना कंट्रोल होना चाहिए कि वेबसाइट पे आपको पेजेस बनाने हैं, पोस्ट बनाने हैं, कुछ कॉमन चेंजेस करने हैं, तो आप कर पाओ. तो यू शुड हैव दैट फ्रीडम कि आप वेबसाइट को अपने तरीके से मैनेज कर पाओ. दैट फ्रीडम यू हैव टू अचीव दैट फ्रीडम कि आप अपनी वेबसाइट को अपने तरीके से मैनेज कर पाओ. द नेक्स्ट प्रिंसिपल वी विल फॉलो लर्न, डू एंड टीच. तो लर्न आप लाइव क्लासेस में लर्न करेंगे. डू यानी you will do the practice and do the assignments and you will do it yourself. And teach, जब भी मौका मिले, किसी के साथ भी मौका मिले, प्लीज टीच. तो कम्युनिटी में भी जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होंगे, उसको किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन हेल्प देम टू एग्जीक्यूट दैट पार्ट. So learn, do, teach is the fastest way to learn anything. So we'll work towards that. Efficiency, we will also work towards कि कम से कम टाइम में हमें अपनी वेबसाइट को बेस्ट वर्जन लॉन्च करना है. कम से कम टाइम में बेस्ट वर्जन लॉन्च करना है. It's not like lifelong we are only dedicating our life to manage our website. No. Version 1 7 days में हो गया, फिर version 2 1 month में होगा. उसके बाद every day even you are spending 15-20 half an hour or 1 hour on your website, तो आपकी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल up to date रहे. तो we will work towards efficiency, we will work towards abundance. वेबसाइट पे रिमेंबर, जब आप जितना ज्यादा कंटेंट क्रिएट करेंगे, आप उतना कंटेंट क्रिएट करने लग जाओ जितना आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, यू विल बिकम रिच. डिजिटल मीडियम पे ये फॉर्मूला कहीं आप नोट कर लो. यू क्रिएट द मोर कंटेंट जितना कि आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, एंड यू विल बिकम रिच. एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू एनी पार्ट ऑफ द लाइफ. कहीं पे भी आप इतना क्रिएट करो कि पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं कर पाओगे, तो आप रिच हो सकते हो. सेम विद द डिजिटल मीडियम. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप इस वेबसाइट पे आप ब्लॉग कंटिन्यूसली ब्लॉग लिखेंगे, वीडियोस डालेंगे, कोर्सेज डालेंगे, इन्फॉर्मेशन डालेंगे, आर्टिकल डालेंगे, टेस्टिमोनियल्स डालेंगे, इतना कंटेंट क्रिएट करेंगे कि वो दैट विल मेक यू रिच. राइट. एजुकेशन इज द बेस्ट मार्केटिंग.
तो उसमें हम एजुकेशनल कंटेंट डालेंगे, सो दैट अबंडेंस, यू आर गोइंग टू क्रिएट अबंडेंस ऑफ कंटेंट एंड यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ अबंडेंस थ्रू दैट कंटेंट एज वेल. Growth, this community here, I want every single of you grow in every field. वेबसाइट के थ्रू ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, माइंडसेट का ग्रोथ, बिजनेस का ग्रोथ, रेवेन्यू का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ. तो हर ग्रोथ की बात हम लोग कोशिश करेंगे कि करें. क्लैरिटी, हर वेबसाइट, हर काम से पहले आपको एंड गोल क्लियर होना चाहिए एंड स्टार्ट विद द एंड. वेबसाइट बना रहे हैं, क्या है एंड गोल, तो ऑलवेज वी विल स्टार्ट विद द एंड. And then we will also look forward to contribute in any terms. Contribution in terms of, let's suppose you are giving free training to others, so that is also a kind of contribution. आप पैसे का contributions कर रहे हैं, अपनी मेहनत का contributions कर रहे हैं, time का contributions कर रहे हैं, तो any kind of contributions. So all these are the code of honor which you can keep in mind while we are working on this project. So here, this is the glimpse of that what we are supposed to do, and your action step, I'm expecting the action step कि 3 रिसर्च करके वेबसाइट निकालेंगे, 3 यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस निकालेंगे, 3 कॉल टू एक्शन निकालेंगे, 1 प्रोडक्ट की डिटेल निकालेंगे और अपने टारगेट ऑडियंस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख के लाएंगे नोट पैड पे, राइट. और कल सुबह 8 बजे मैं मिलती हूँ. उसके अलावा जो पिछला बैच था, उस बैच का मैं 1 या 2 वीडियो शेयर करूंगी. अगर टाइम मिलता है तो आप उन 2 वीडियो को भी देख सकते हैं. अगर नहीं टाइम मिलता है, इट्स परफेक्टली फाइन. एनीवे वी आर गोइंग टू रिपीट इट इन टुमारो सेशन, तो आपको बिल्कुल उसकी चिंता नहीं करनी है. लेकिन हाँ, जस्ट यू वांट टू नो एंड गो थ्रू दैट प्रोसेस, तो आप उस 2 वीडियो को भी देख करके आ सकते हैं. नाइस. So thank you so much, and looking forward to see you tomorrow 8 o'clock. Bye. Take care. Namaskaram.